Hello students, this is Ejaz Sir, Maths Academy Nagpur and I am Ansar sir. We have to study, yesterday we studied in the previous lecture, we studied cohesive forces, adhesive forces and we came to know that cohesive forces are very strong in mercury and cohesive forces are comparatively weaker in water. What is cohesive force by the way? The force of attraction between the molecules of the same substance is called cohesive force. For example, force of attraction between water droplets and force of attraction between any two mercury droplets. That is cohesive force. What is adhesive force? The force of attraction between the molecules of two different substances is called adhesive force. The force of the force of attraction between ink molecules and notebook page molecules, and the force of attraction between chalk particles and board surface. That is adhesive force of attraction. After that, the third definition that we were studying was range of molecular attraction. Range of molecular attraction. Range of molecular force. Range of molecular force. And I told you, range always means distance. बंदूक से जब गोली चलती है तो हम बोलते हैं इस बंदूक की गोली का रेंज कितना है, कितने किलोमीटर तक फेंकती है ये, है ना, तो कितने दूर तक गोली जाती है, दैट इज कॉल्ड रेंज, है ना। और पुलिस भर्ती में भी वो उनके पास एक हेवी बॉल होता है, वो उसको फेंकना पड़ता है, तो वो भी देखते कितने रेंज तक हम फेंक सकते हैं, कितने दूर तक फेंक सकते हैं। तो व्हाट इज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्स? तो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, the maximum distance from the molecule, the maximum distance from the molecule, the maximum distance from the molecule up to which the molecular force of attraction is effective. Molecular force of attraction, molecular force of attraction is effective. Is effective. Remember, cohesive and adhesive forces do not follow inverse square law. So this molecular range of attraction for most liquids, for many liquids, this value is 10 raised to power minus 9 meter. Intermolecular forces are of the order in solids for most solids and liquids. For most solids and liquids, range of molecular attraction, range of molecular force is, range of molecular force is of the order of 10 raised to power minus 9 meter, that is nanometer, 1 nanometer. Of the order of magnitude अपन 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी अगर नंबर कोई 5 से अगर ऐसा आपको मालूम है कि अगर ऐसा लिखा 5 इंटू या 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 है तो हम उसको 10 रेज़ टू पावर 7 कर देते हैं. क्यों? ये 6 को हम 10 समझ लेते हैं. और अगर ये 5 से कम वैल्यू है, 5 या उससे ज़्यादा है तो हम इसको 10 कर देते हैं. और अगर ये 5 से कम, अगर ऐसा 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 है तो हम उसको ओनली 10 रेज़ टू पावर 9 लिखते हैं, है ना. और सॉरी, दिस इज 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 है, 9 है, सॉरी 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 है तो इसको 10 रेज़ टू पावर 10 कर देते हैं. सॉरी, सी हियर 6 इंटू है तो इसको ये 6 को हम 10 समझ लेते हैं और एक पावर बढ़ा देते हैं. और अगर वैल्यू 5 से कम है तो वो पावर नहीं बढ़ाते, उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं. हम 11th में पढ़ चुके हैं और कोई पूछेगा भी नहीं आपको, अभी इसका कोई काम नहीं है. बस इतना याद रखना, मैक्सिमम डिस्टेंस अगर ये एक मॉलिक्यूल है तो ये दूसरे मॉलिक्यूल को, ये अगर एक वाटर ड्रॉपलेट है तो ये दूसरे वाटर ड्रॉपलेट को कितने दूर तक, ये अगर वाटर ड्रॉपलेट है, पानी का बूंद है छोटा सा और यहाँ एक पानी का बूंद है, तो दोनों में अट्रैक्शन रहेगा. कब तक अट्रैक्शन रहेगा? जब तक इनके बीच में डिस्टेंस 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 मीटर या उससे कम डिस्टेंस है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 मीटर. If the distance between two molecules is 10 raised to power minus 9 meter or less than that, then there will be attraction between them. But if the distance increases beyond 10 raised to power minus 9 meter, then what will happen? There will be no force of attraction between them. अगर ये 10 raised to power minus 8 meter हो जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है अगर -8, आप समझते हो -9 -10 का मतलब, तो 10 raised to power -8 हो जाता है अगर, तो वैल्यू बढ़ गई.
डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें नहीं रहेगा. सो टू मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर ओनली इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑफ दिस ऑर्डर 10⁻⁹ मीटर. इस रेंज का अगर अट्रैक्शन, इस रेंज का डिस्टेंस है तो ही उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता. अगर इससे ज्यादा डिस्टेंस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम करता. ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करता. न्यूटन का जो लॉ बोला है या कूलम ने जो बोला है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इसमें वो डिस्टेंस लागू नहीं होता. जैसे थोड़ा सा भी डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स गायब भी हो जाता है एकदम से. ऐसा नहीं कि थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स थोड़ा कम होगा, नहीं. डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा तो फोर्स गायब, खत्म, काम खत्म. सो व्हाट इज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स? इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस. और वैसे भी रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्टेंस. द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मॉलिक्यूल अप टू व्हिच द मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इफेक्टिव. जितने दूर तक एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच की उस दूरी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स. उससे ज्यादा अगर डिस्टेंस है तो वो अट्रैक्शन नहीं काम करता. डेफिनेशन नंबर 4. फोर्थ डेफिनेशन, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है यहाँ पर? अट्रैक्शन. इन्फ्लुएंस का मतलब है अट्रैक्शन. अगर समझो मैंने अपने बॉडी में बहुत परफ्यूम मार दिया, मैंने एकदम झकास, एकदम बहुत सारा, और खुशबू सूंघकर देखा तो मेरे आसपास एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ कर लो. मेरे आसपास एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ कर लो और वो स्फीयर के अंदर अगर आप आते हो रेंज में तो आपको खुशबू आएंगी. लेकिन अगर वो इमेजिनरी स्फीयर के एरिया से आप दूर हो मुझसे तो आपको खुशबू नहीं आएंगी. तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? इट इज एन इमेजिनरी स्फीयर. It is an imaginary sphere with the molecule as the center, and molecular range of force as the radius. अभी हमने उसका इजी डेफिनेशन बना लिया. इट इज एन इमेजिनरी स्फीयर. व्हाट इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस? इन्फ्लुएंस एंड अट्रैक्शन. इट इज एन इमेजिनरी स्फीयर विद द मॉलिक्यूल एज द सेंटर एंड मॉलिक्यूलर रेंज ऑफ फोर्स एज द रेडियस. मतलब ये अगर एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है बीच में, दिस इज द मॉलिक्यूल एट द सेंटर, तो वो यहाँ की चीज को अट्रैक्ट कर सकता है, यहाँ की चीज को अट्रैक्ट कर सकता है, यहाँ की चीज को अट्रैक्ट कर सकता है, यहाँ की चीज को अट्रैक्ट कर सकता, इतने दूर की चीजों को वो अट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि ये डिस्टेंस 10⁻⁹ मीटर के रेंज का है. तो ये जो आसपास का जो इमेजिनरी स्फेरिकल चारों तरफ जो उसके एरिया रहेगा 4πr², इमेजिनरी जो स्फीयर रहेगा, ये इमेजिनरी स्फीयर को कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. यानी अगर कोई मॉलिक्यूल वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आता है तो अट्रैक्ट होगा, और अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर है तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा. जिस तरह हम बोलते हैं एक मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, या एक चार्ज है तो उसके आसपास चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है इमेजिनरी, यानी वो दिखाई नहीं देती है लेकिन उसके एरिया में वो अट्रैक्ट कर सकता है. वैसे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब है कि मॉलिक्यूल के चारों तरफ गोल स्फेरिकल सरफेस में चारों तरफ जहां जहां मॉलिक्यूल दूसरी मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है उतने इमेजिनरी स्फीयर को बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. अगर कोई चीज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के कम डिस्टेंस में आती है तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से दूर रहती है, अगर कोई मॉलिक्यूल यहाँ है तो दूसरे मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इधर है, दूसरे मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इधर है. ये पहला मॉलिक्यूल इसके स्फीयर के बाहर है, दूसरा मॉलिक्यूल उसके स्फीयर के बाहर है. तो इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में फर्स्ट मॉलिक्यूल के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में सेकंड मॉलिक्यूल नहीं है, और सेकंड मॉलिक्यूल के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में फर्स्ट मॉलिक्यूल नहीं है. तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, दोनों में अट्रैक्शन ऑलमोस्ट जीरो रहेगा. हाँ, अगर यहाँ एक मॉलिक्यूल है और ये उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इमेजिनरी स्फेरिकल एरिया है, और उतने एरिया में दूसरा मॉलिक्यूल आ जाता है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये रेंज के अंदर आ गया, 10⁻⁹ मीटर के ऑर्डर रेंज के अंदर आ गया, तो फिर वो अट्रैक्ट होना चालू हो जाएगा. आई होप आप ये समझ गए होंगे. अपने हिंदी मूवीज में दिखाते हैं जहां जहां हीरो चलता है तो स्फेरिकल चारों तरफ उसको स्फेरिकल लाइट चलता है उसके साथ साथ, तो इमेजिनरी जैसा लाइट चलता है वैसा इमेजिनरी स्फीयर इमेजिन करना है हमको.
कि क्या कहते हैं पार्टिकल है उसके आसपास में स्फेरिकल एरिया। अब डेफिनेशन नंबर 5, फिफ्थ वाली डेफिनेशन है सरफेस फिल्म। अब यहाँ फिल्म का मतलब क्या होता है? सरफेस फिल्म। रिमेंबर फिल्म का मतलब होता है अ थिन लेयर, पतली चीज को फिल्म बोलते हैं। और वैसे भी जो एक्सरे की भी फिल्म पतली होती है, सिनेमा की भी फिल्म पतली होती है, तो जो चीज पतली हो उसे सरफेस फिल्म कहते हैं। तो व्हाट इज सरफेस फिल्म? अगर ये एक बीकर है और इसमें अगर ये लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर में लिक्विड भरा हुआ है, एक बीकर है उसमें लिक्विड भरा हुआ है और यहां पर एक मॉलिक्यूल है यहां पर, तो मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस कहां तक रहेगा? ये ऊपर 10⁻⁹ मीटर रेडियस, नीचे 10⁻⁹ मीटर रेडियस, तो इतने एरिया में उसका स्फीयर रहेगा। तो इतने थिकनेस की जो फिल्म बनेगी, इतने थिकनेस की जो लेयर बनेगी, इस लेयर को बोलते हैं सरफेस फिल्म। दिस इज कॉल्ड सरफेस फिल्म। सो हम हाउ कैन वी डिफाइन सरफेस फिल्म? इट इज अ लेयर ऑफ द लिक्विड हैविंग थिकनेस, अपनी बुक में क्या होता है इसको? द सरफेस लेयर ऑफ अ लिक्विड with thickness equal to range of, वही है, it is the surface of a liquid, the surface of a liquid having thickness equal to molecular range of force, having thickness equal to molecular range of force. The surface layer of a liquid with thickness equal to range of intermolecular force, having thickness equal to range of molecular force. अब रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मॉलिक्यूल यहाँ है और उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसा है और ये नीचे 10⁻⁹ मीटर है, ये हो जाएगा फिर वो। The surface of a liquid having thickness equal to molecular range of force. The surface of a film having the surface layer of a liquid with thickness equal to range of intermolecular force. और अपनी टेक्स्ट बुक में भी दिखाया है, this is the layer shown between xy and x dash y dash, xy and x dash y dash, yes, ये शो किया है। तो इतना थिकनेस की जो लेयर होती है लिक्विड की, उसका थिकनेस का वैल्यू कितना रहेगा? 10⁻⁹ मीटर। या हम शब्दों में लपेटना चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं, द सरफेस ऑफ अ लिक्विड हैविंग थिकनेस नियरली इक्वल टू या हैविंग थिकनेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ मीटर इज कॉल्ड surface film. The surface of a liquid having thickness equal to molecular range of force is called surface film. Surface film यानी पतली सी लेयर, जैसे किसी मैंगो का चिप निकाल लेते हैं हम, वैसा एक पतली सी लेयर को कहते हैं सरफेस फिल्म। अब एक नई कहानी शुरू होती है। Explain surface tension on the basis of molecular basis. Surface tension explained on the basis of, पहले मैं आपको सरफेस टेंशन समझा दूं या पहले मैं आपको ये एक्टिविटी समझा दूं? पहले मैं आपको समझा देता हूं, टाइम तो है हमारे पास, ठीक है। हम पहले ये एक्टिविटी समझ लेते क्या है, ठीक है। सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थियरी। सरफेस टेंशन ये 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। सर इससे पहले पुरानी बोर्ड एग्जाम्स में ये आ चुका है। सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थियरी, सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थियरी। मॉलिक्यूलर बेसिस पर, मॉलिक्यूलर थियरी के बेसिस पर हमको सरफेस टेंशन क्या है वो समझना है, फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा सरफेस टेंशन क्या चीज है। पहले ये थियरी समझ लेते हैं। Let us suppose there is a container containing a particular liquid. That liquid may be water, kerosene or any liquid. तो ये लिक्विड उसके अंदर में भरा हुआ है, ठीक है। या ऐसा लिक्विड है जिसने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाया है और ये है सर ऐसा, ये लिक्विड है इसके अंदर में भरा हुआ, ठीक है। नाउ सी
दिस लिक्विड हैज मेनी ड्रॉपलेट्स, ये लिक्विड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर ये जो भी लिक्विड होगा उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल, अगर ये वाटर है तो इसमें बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर ये केरोसिन है तो बहुत सारे केरोसिन मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो लेट अस सपोज जो भी ये लिक्विड है उस लिक्विड के 3 मॉलिक्यूल्स को हम कंसीडर करेंगे। कितने मॉलिक्यूल्स कंसीडर करेंगे? 3। एक मॉलिक्यूल है, समझो मॉलिक्यूल ए, ये दिस इज मॉलिक्यूल ए। मॉलिक्यूल ए इज वेल इनसाइड द लिक्विड और उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ये है, दिस इज मॉलिक्यूल ए, ये मॉलिक्यूल ए है और उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहाँ है? वेल इनसाइड द लिक्विड। पूरा का पूरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है उसका, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मीनिंग समझे, एन इमेजिनरी स्फीयर ऑन ऑल द साइड्स, यानी एन इमेजिनरी स्फीयर सराउंडिंग द ऑब्जेक्ट, सराउंडिंग द मॉलिक्यूल एज द सेंटर। मॉलिक्यूल सेंटर में है और मॉलिक्यूलर रेंज ऑफ फोर्स उसकी रेडियस है और ऐसा एक इमेजिनरी स्फीयर। तो ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल ए इज वेल इनसाइड द लिक्विड। अब ये मॉलिक्यूल ए पर नेट फोर्स कितना एक्ट होगा? तो यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल होगा, पानी वाटर है समझो ये, तो इधर वाटर मॉलिक्यूल दूसरा होगा, वो उसको इधर खींच रहा होगा, इधर भी मॉलिक्यूल होगा उसको इधर खींच रहा होगा, एक मॉलिक्यूल इसको ऊपर खींच रहा होगा, एक मॉलिक्यूल इसको नीचे खींच रहा होगा। तो जितना फोर्स लेफ्ट से उतना फोर्स राइट से है, जितना फोर्स ऊपर से उतना फोर्स नीचे से। सो हाउ मच नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0। इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? मॉलिक्यूल ए है ना, हम शॉर्ट में इसको ऐसा लिख लेते, मॉलिक्यूल ए वेल इनसाइड लिक्विड, वेल इनसाइड द लिक्विड है ना। फिर लिखेंगे फुल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इनसाइड लिक्विड, फुल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, पूरा का पूरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहाँ है? इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड। नेट कोहेसिव फोर्स इज इक्वल टू 0। पूरा फोर्स उस पे 0 आ रहा है, नेट कोहेसिव फोर्स। पूछो क्यों? क्योंकि लेफ्ट से राइट से इसके चारों तरफ क्या है? अगर ये वाटर है तो दूसरे के वाटर मॉलिक्यूल्स है, लेफ्ट वाला, राइट वाला, अप वाला, डाउन वाला, दाएं बाएं दाएं बाएं, सब उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? नेट कोहेसिव फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? उस पर नेट कोहेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है 0। अब दूसरा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल नंबर 2, यानी सॉरी अपन इसको ए नाम देते हैं, अपन इसको नाम देते बड़ी बी, ये बड़ी बी है। अब यहां पर देखो, लेट अस कंसीडर सेकंड मॉलिक्यूल, ये है सेकंड मॉलिक्यूल। इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस थोड़ा सा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एयर में जा रहा है और ज्यादा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लिक्विड में है। दिस इज मॉलिक्यूल बी, ये मॉलिक्यूल बी है, ठीक है। क्या लिखेंगे मॉलिक्यूल बी के बारे में? मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, लार्जर पार्ट ऑफ इट्स स्फीयर इन्फ्लुएंस इज इनसाइड द लिक्विड एंड स्मॉलर पार्ट इज इन एयर। क्या लिखेंगे मॉलिक्यूल बी के लिए? मॉलिक्यूल बी, उसके लिए क्या लिखेंगे? लार्जर पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, sphere of influence inside the liquid and smaller part of sphere of influence, smaller part of sphere of influence is outside the liquid in air, लिक्विड के बाहर, एयर में है। अब एयर में, और ये मॉलिक्यूल एयर, यहाँ पर बाहर में क्या होगा? एयर मॉलिक्यूल होगा। तो ऊपर कौन अट्रैक्ट कर रहा है उसको? एयर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा है। और नीचे कौन अट्रैक्ट कर रहा है? ये जो मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल। बी मॉलिक्यूल के बारे में हम और लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल बी इज अट्रैक्टेड बाय adhesive force of air, adhesive force between liquid molecule and air molecule, and by cohesive force and attracted by, and also
attracted by cohesive force डाउनवर्ड। अब ये मैं लिखाने के देने की जरूरत नहीं, कोहेसिव फोर्स किसका रहेगा, लिक्विड लिक्विड के बीच में रहेगा, है ना। कोहेसिव फोर्स बिटवीन, लिख देता हूं फिर भी, लिक्विड मॉलिक्यूल बी एंड अदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स, दूसरे लिक्विड मॉलिक्यूल्स। therefore net force will be downwards, resultant force किधर रहेगा, डाउनवर्ड। क्यों? बिकॉज कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन adhesive force, Fc is greater than Fa। एयर मॉलिक्यूल ऊपर अट्रैक्ट कर रहे, लिक्विड मॉलिक्यूल नीचे अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ऐसा क्यों? बिकॉज डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस, डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। कहानी को समझो, बात को समझो। बात क्या है मालूम है, ये मॉलिक्यूल बी है, अब ये ऊपर जो है, ऊपर पे एयर मॉलिक्यूल्स है, यस बोलो, ऊपर पे एयर मॉलिक्यूल्स है, और एयर की डेंसिटी कम रहती है, एयर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं। तो यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स होंगे एयर के, 10-20 मॉलिक्यूल होंगे। और यहाँ नीचे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रहेंगे 100-200। लिक्विड मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे। क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा रहती है तो उसमें मॉलिक्यूल्स ज्यादा रहते हैं, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स उसको नीचे खींच रहे और एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर खींच रहे, तो इस पर नेट फोर्स कहाँ रहेगा, नेट फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज F कोहेसिव, नीचे खींच रहा है, और ऊपर कौन खींच रहा है, F एडहेसिव। हम चाहे तो उसमें छोटा सा एक एरो दे सकते हैं, F एडहेसिव, F एडहेसिव। फोर्स एडहेसिव फोर्स ऊपर खींच रहा है, छोटा एरो, और कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल सी, सबसे बड़ा मॉलिक्यूल, सबसे हीरो मॉलिक्यूल, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूल सी है। ये यहां पे बनाता हूं मैं मॉलिक्यूल सी, और इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहां जा रहा, तो आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एयर में है और आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ये है। दिस इज मॉलिक्यूल सी, ये मॉलिक्यूल सी है। मॉलिक्यूल सी के बारे में हम क्या लिखेंगे, सी मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ, क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल सी लाइज एग्जैक्टली ऑन द सरफेस। मॉलिक्यूल सी लाइज एग्जैक्टली ऑन द सरफेस, half of sphere of influence, half of sphere of influence is in air and half is in liquid. But density of air molecules is less. डेंसिटी लिखो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख देता है इजी लैंग्वेज में। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एयर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एयर is less than number of molecules in liquid। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, हेंस adhesive force of air on molecule C will be
लेस देन कोहेसिव फोर्स ऑफ लिक्विड ऑन मॉलिक्यूल सी। कोहेसिव फोर्स मॉलिक्यूल सी पर ज्यादा है और एडहेसिव फोर्स कम है, क्योंकि एयर और लिक्विड मॉलिक्यूल में एडहेसिव फोर्स है, उसकी वैल्यू कम रहेंगी, और लिक्विड में कोहेसिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा रहेंगी। अब इसकी वजह से रिजल्ट क्या होगा? देखो, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो मिनिमम है। पोटेंशियल एनर्जी ए मॉलिक्यूल में कितनी है? मिनिमम है। बी मॉलिक्यूल में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी इज, ये यहां लिखते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इज लेस देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बी। आप पूछेंगे क्यों? तो देखो, सबसे नीचे ए है, इस पे कोई फोर्स एक्ट हो रहा क्या? नहीं, तो ये वर्क डन कितना कर रहा? 0। इस पे फोर्स एक्ट हो रहा? यस, नीचे। फोर्स किधर है? नीचे। फोर्स पोटेंशियल एनर्जी, और सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किस में है? मॉलिक्यूल सी में। अब इसका एक्सप्लेनेशन में लिख देता हूं, पहले वीडियो पॉज करके ये नोट कर लो, फिर मैं समझाता हूं। पहले वीडियो पॉज करके ये नोट कर लो जल्दी से, मैं मिटाता हूं फिर। अब देखो, यहां से molecule C has done maximum work in going up to the surface against the strong downward cohesive force। कोहेसिव फोर्स किधर खींच रहा है? मॉलिक्यूल सी को नीचे खींच रहा है, और सबसे दूर कौन चले गया? सबसे ऊपर मॉलिक्यूल सी चला गया। इसलिए मॉलिक्यूल सी पर मैक्सिमम फोर्स एक्ट हो, सॉरी, मॉलिक्यूल सी पर कोहेसिव फोर्स बहुत एक्ट हो रहा था, लेकिन वो फिर भी ऊपर चला गया। तो इसीलिए सबसे ज्यादा वर्क किसने किया? मॉलिक्यूल सी ने। हेंस मॉलिक्यूल सी हैज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। Maximum potential energy. It has maximum potential energy. मॉलिक्यूल सी में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? मैक्सिमम है। क्यों है? समझ रहे? सब मॉलिक्यूल्स इसको बोल रहे हैं, अरे नीचे आ, नीचे आ, नीचे आ, नीचे आ। ये बोलता नहीं, मैं ऊपर जाऊंगा। और सब कोहेसिव फोर्स इसको नीचे खींच रहा था। इसको कोहेसिव फोर्स ये बोल रहा है नीचे आ, नीचे आ, नीचे आ। सब मिला के सबका रिजल्ट क्या हो रहा है? नीचे हो रहा। सब बोल रहे हैं नीचे आ रहे बाबू, नीचे आ रहे बाबू, ये, लेकिन वो मॉलिक्यूल ऊपर चला गया। तो इसने सबसे ज्यादा वर्क डन किया। अब वर्क डन बाय मॉलिक्यूल सी इज मैक्सिमम, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैक्सिमम मॉलिक्यूल सी इज मैक्सिमम। अब एक रूल दुनिया का याद रखो, दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का रूल है कि हर चीज चाहती है कि मुझ में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहे। ये देखो, ये पेन इस अर्थ पे, इसको मैंने यहाँ उठा लिया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। मैं छोड़ूंगा तो ये कहाँ जाएगा? जमीन पे जाके गिर जाएगा, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी फिर। तो दुनिया की हर चीज, खड़े रहने वाले आदमी से ज्यादा कंफर्टेबल कौन फील करता? बैठने वाला। क्यों? क्योंकि वो अर्थ के नजदीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? m, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। तो mgh, जितना ज्यादा h बढ़ेगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जैसे जैसे हम बिल्डिंग पर चढ़ते ऊपर, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, तो घबराहट बढ़ती है, नीचे देखो तो डर लगता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो और अगर नीचे बैठे रहे तो खुश रहते हैं। कोई लोग तो कहते हैं कि हमें राजगद्दी पे नहीं बैठना है, हमें जमीन पर बैठना है, क्योंकि जमीन पर बैठने वाले को गिरने का डर नहीं होता। तो जो खड़ा है उससे ज्यादा कंफर्टेबल कौन है? बैठा हुआ। क्यों? क्योंकि बैठा हुआ आदमी अर्थ के पास में है, उसकी हाइट कम है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। बैठने वाले से ज्यादा कंफर्टेबल लेटने वाला फील करता है। क्यों? मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है, लेटने वाले को और ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। वो इसलिए क्योंकि वो ग्राउंड से एकदम लिपटा हुआ है, ग्राउंड पर नहीं चिपका हुआ है, वो उसकी हाइट एकदम मिनिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। अगर मेरे पास एक रबर बैंड है, इलास्टिक, मैंने उसको खींच के रखा, तो उसके पार्टिकल्स क्या हो गए? दूर दूर चले गए। पार्टिकल्स दूर दूर चले गए तो पार्टिकल्स क्या कोशिश करेंगे? वापिस आने की कोशिश करेंगे।
और जब तक वो इलास्टिक को मैं खींच के रखूंगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेंगी। जैसे मैं छोड़ दूंगा तो पार्टिकल्स पास में आ जाएंगे और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएंगी। तो दुनिया की हर चीज चाहती है कि मुझ में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, उसको समझो। मेरे पास एक बलून है और वो बलून पे ये छोटा सा बलून है ऐसा, और उसमें मॉलिक्यूल्स है ऐसे 3, 6, 9, 12, 15। मैंने क्या किया, एक बलून खरीदा और बलून के सरफेस पर मैंने काले काले बिंदु बना दिया, डॉट्स बना दिया। एक बलून है उसमें मैंने काले काले डॉट्स बना दिया। अब मैंने इस बलून को फुलाना चालू किया, एयर भरना चालू किया। साइकिल का पंप लिया या तो अपने मुंह से उसमें हवा भरना चालू कर दिया। हवा भरते भरते क्या हुआ, ये बलून ऐसा बन गया। मैंने कितने बिंदु बनाया था इसमें, 15 सॉरी 3, 6, 9, 12, 15, हाँ बराबर 15 है। अब ये क्या होंगे, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ, मुझे बताओ कि ये बलून अनइन्फ्लेटेड बलून है, डिफ्लेटेड बलून जिसको बोलते हैं, डिफ्लेटेड बलून में ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है या इन्फ्लेटेड बलून में ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है? इन्फ्लेटेड बलून यानी फूगा हुआ बलून, फूला हुआ, और डिफ्लेटेड बलून यानी चिमा हुआ बलून। तो चिमे हुए बलून में, मुरझाए हुए बलून में ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है या फूले वाले में? तो इसमें मोर पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, मोर पोटेंशियल एनर्जी इसमें रहेगी, मोर पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो डिफ्लेटेड बलून है इसमें रहेंगी लेस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों कम? इसके मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कैसा है, ज्यादा है। अब मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा क्यों है? क्योंकि मैंने उस पर वर्क किया। मैंने जब बलून में फूंक मारा तो बलून फूल गया, तो मॉलिक्यूल्स के बीच का मैंने फोर्स लगाया, फूंक मार के मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। तो फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करा दिया मैंने मॉलिक्यूल्स का, तो क्या हो गया, वर्क डन हो गया। तो इस पर वर्क डन करने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। और दुनिया की हर चीज क्या चाहती है कि मुझ में पोटेंशियल एनर्जी कम हो। तो एक बलून से अगर पूछा जाए कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तो बलून बोलेगा मैं छोटा होना चाहता हूं, क्योंकि बलून को फुलाने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। इट इज बिहेविंग लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। कोई भी बुक में देखोगे आप तो फिजिक्स के आपको ये चैप्टर में ये वर्ड जरूर मिलेंगे, स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। यानी लिक्विड की जो टॉप सरफेस रहती है, जो आउटर सरफेस रहती है, वो ऐसी बिहेव करती है जैसे कोई बलून है, जैसे कोई रबर है और उसको दोनों तरफ से किसी ने खींच के रखा। रबर की शीट को अगर दोनों तरफ से कोई खींच कर रखे, चारों तरफ से मान लो कोई खींच कर रखे, तो वो कैसी हो जाएंगी, टाइट हो जाएंगी, टेंशन में रहेंगी। टाइट, फिजिक्स में टेंशन यानी टाइटनेस। तो अगर समझो मैंने एक बलून को काटा चाकू कैंची से और उसकी एक शीट बना लिया, बलून की एक टेक्स्ट बुक के पेज के जैसी मैंने शीट बना लिया, और चार तरफ से 4 लड़कों को काम दे दिया कि आप लेफ्ट की तरफ खींचो ये बलून की शीट को, एक को बोला आप राइट की तरफ खींचो, एक को बोला एक सामने खींचो, और इधर से मैं पीछे खींच रहा हूँ। तो बलून कैसा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। बलून की जो शीट है वो खींची जाएगी, इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह खींची जाएगी। अब उसकी इच्छा क्या है, सिकुड़ने की, लेकिन वो सिकुड़ नहीं पाएंगी क्योंकि उसको फोर्स ने खींच के रखा है। बस इसी तरह से, और उसकी इच्छा क्या होती है कि वो छोटी हो जाए। ये बलून की क्या इच्छा है कि उसमें की एयर जल्दी निकल जाए और वो बलून छोटा हो जाए, पार्टिकल्स पास पास में आ जाए, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए। बस यही रीजन है कि हर लिक्विड की सरफेस ऐसा बिहेव करती है जैसे उसको किसी ने खींच के रखा है, और उसके खींच के रखने के कारण उसमें टाइटनेस आ जाता है। मान लो किसी के घर में शादी का प्रोग्राम है और कहीं मंडप डाल दिए, ऊपर कपड़े का पाल पर्दा मंडप डाल दिए, और वो मंडप के ऊपर छोटे बच्चे ग्राउंड में मैच खेल रहे थे, बॉल चले गया ऊपर मंडप के ऊपर छत पे। अब वो बॉल निकालने के लिए छोटे लड़के को चढ़ा रहे, जैसे छोटे लड़के को चढ़ा है तो वो जो मंडप के ऊपर से वो झोल खाएगा, उसमें डिप्रेशन आएगा, डूबेगा वो नीचे झोल, ठीक है। अब वो लड़का चल नहीं सकता, वरना मंडप नीचे गिर जाएगा। तो क्या करेंगे, उसके दोस्त चारों तरफ से उसके दोस्त वो मंडप को टाइट खींच के रखेंगे, समझो कपड़ा फटता नहीं है, टाइट खींच के रखेंगे, और वो लड़के को बोलेंगे आप चलो बेटा इस पर। तो लड़का चलेगा तो मंडप झोल खाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मंडप का जो सरफेस था वो टाइट हो गया है।
तो उसी तरह से लिक्विड की सरफेस भी टाइट रहती है और उसमें जो टाइटनेस है लिक्विड की सरफेस में उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। आपने देखा होगा बड़े बड़े आदमी लोग, औरतें लोग पानी के ऊपर चल नहीं सकते, बड़े जादूगर लोग बोलते हैं हम चल कर दिखाएंगे, नहीं चल सकते, लेकिन ये काम कीड़े मकोड़े कर लेते। छोटी सी चींटी पानी पर चलती है, क्यों चलती है, डूब क्यों नहीं जाती, क्योंकि पानी का सरफेस टेंशन ज्यादा है। और अगर बड़ी मक्खी है और हनी है शहद, तो शहद के ऊपर मक्खी चल सकती है बिना डूबे, क्योंकि हनी का सरफेस टेंशन और ज्यादा है। केरोसिन का सरफेस टेंशन बहुत कम है। केरोसिन बहुत पतला है, पानी से भी ज्यादा पतला होता है मिट्टी का तेल, इसीलिए कहा जाता है कि कहीं नाला होगा, स्टेगनेंट वाटर जमा होगा, उस पर केरोसिन डाल दो, जैसे ही मच्छर मक्खी उस पर बैठेगा तो डूब जाएगा, क्योंकि केरोसिन में सरफेस टेंशन बहुत कम है, लेकिन पानी में सरफेस टेंशन ज्यादा है। अब इसको प्रूव करके दिखाएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। एक दो एक्टिविटीज समझाऊंगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि वाटर में सरफेस टेंशन रहता है और इसी के कारण चींटी वगैरह उसके ऊपर चल सकती है और डूबती नहीं। ठीक है, हैव अ नाइस टाइम।